Bismillahirrahmanirrahim. It's Hamid Irfan Najmi yet with another lecture, and today is lecture number 5, and I hope all of you are enjoying good health and spirit and will be getting maximum out of this Ramzan. So I would request all of you to please remember me in your humble and kind and generous prayers. So let's get down to this lecture, and today we'll talk about how to be active and socially useful, and our motivate is it that we have to build this country a better place to live in. So we will work together for a better Pakistan. So for that very reason we need to be very active and socially useful. Well, when we talk about active and socially useful, the one thing that comes in your mind is we have to be more responsible of the things that we are given with, right? So the opportunities and the time or the responsibilities that we have in our pocket, we have to manage them very rightly and very accurately. So before moving forward, I would like to tell you that there are few items that are very crucial to know when we are talking about adopting an active lifestyle. Number 1 is your time management. Number 2 is your relationship management. Number 3, your contribution in any format, rather it's a financial contribution or the contribution of your time, energy, resources, books, or whatsoever the case is. And number 4 is your physical activity, and get your ass moving, right? So these are the 4 things that will help you to contribute or to build a healthy, active and socially responsible lifestyle. So let's get down to it and define what is responsibility. So according to the Wikipedia, the word responsibility means the obligation to answer for action. Often this means answering to authority. Responsibility is also loosely used as the recognition that in order to achieve one's purpose, one must act oneself, take responsibility rather than expecting others to do something. For example, comparing initiative. अच्छा, अब ये फैंसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी हमारे ज़हन में आती है, इसका मतलब है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पर्पज़ है हमारा, और वो पर्पज़ तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक हम खुद से टेकअप ना करें उसको। उस पर्पज़ को जब तक हम टेकअप ना करें, हम जब टेकअप करेंगे तभी वो मकसद पूरा हो सकता है, ना कि हम इंतज़ार में रहेंगे कोई और आएगा और उसको टेकअप करेगा। So responsibility is that your obligation, आपके ऊपर ये फरीज़ा है कि आपने सर अंजाम देना है कोई चीज़। For example, it is your responsibility to be truthful. It is your responsibility to choose the right path. It is your responsibility to clean your vicinity or the colony or the place where you live in, right? So responsibility is your obligation to, it can be a person, it can be a society, it can be a country, it can be a family. तो आपका फरीज़ा फैमिली के लिए भी है, आपका फरीज़ा अपने मुल्क के लिए भी है, आपका फरीज़ा आपके दोस्तों के लिए भी है, और आपका फरीज़ा आपके पार्टनर्स के लिए भी है, राइट? सो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हुए देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम अटैच कर दें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या है? दैट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्सक्यूज मी। तो ये एक इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का फरीज़ा है टुवर्ड द सोसाइटी इन विच ही ऑपरेट्स। जिस भी सोसाइटी में वो रहता है उसके अंदर उसका फरीज़ा है कि वो उसके कुछ फ़राइज़ अंजाम दे, राइट? ओके, तो अब हमें थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये देखना कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा पार्ट क्या है, ठीक है? हमें ये देखना है कि जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे हम रहते हैं उधर हमारा इम्पैक्ट क्या है। क्या हमारे होने से कुछ अच्छा भी हो रहा है? क्या हमारे होने से कोई अच्छी वाइब्स भी आती हैं? क्या हमारे होने से कुछ अच्छा प्रोड्यूस भी होता है सोसाइटी के अंदर के नहीं होता? सो इट इज़ इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन, या किसी ग्रुप का या किसी कंपनी या किसी बिजनेस का भी ये हो सकता है इंटरेस्ट कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से वेलफेयर और वेल बीइंग जो है वो पैदा की जा सके, ठीक है? सो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आगे इसको मैं मज़ीद डिफाइन करूंगा और बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, that it is a doctrine that claims that an entity, whether it is a state, government, corporation, organization or individual, ये कोई भी इदारा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल, एक आम फर्द, हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं जो उसने सर अंजाम देने हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। This responsibility can be negative in that it has a responsibility to refrain from acting, or it can be positive, meaning a responsibility to act. देखिए, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेगेटिव फॉर्मेट है और एक पॉजिटिव फॉर्मेट है। नेगेटिव फॉर्मेट है कि आप सोसाइटी में रहते हुए कुछ चीज़ों से किनारा कश रहेंगे, जिस तरह से वो हमारी सोसाइटी के अंदर है कि आपने शराब नहीं पीनी, तो आप रिफ्रेन रहेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। और दूसरी साइड पे कुछ पॉजिटिव भी है, वो ये है कि आपने सफाई सुथराई रखनी है अपनी गली मोहल्ले की, तो ये क्या है, ये एक्शन है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमें कुछ काम करने से रोकती हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर मैं कहूँ कि हाँ, शोरगुल मचाना और लड़ाई करने से दूर रहना चाहिए, तो ये रिफ्रेनमेंट है, नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी साइड पे मैं कहूँ कि भाईचारा और काइंडनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर यू हैव टू बिल्ड एन एक्शन, कुछ करने का भाई, ठीक है। सो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हमारी समझ में आगे देखते हैं। दैट इज अ साइकोलॉजिकल ओनरशिप। ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल ओनरशिप का मतलब ये है कि आप कितनी चीज़ को ओन करते हो, आप कितना किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजेशन फील करते हो, कितना बिलोंगिंगनेस, कितना कंट्रोल, कितनी अथॉरिटी, और कितना ज़्यादा आप उसकी एडवोकेसी करते हो, मतलब आप उसके लिए बातचीत करते हो, आप बताते हो लोगों को नहीं यार ये चीज़ ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्योंकि ये मैं ओनरशिप में आती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ओनरशिप के अंदर इंसान पोजेसिव फीलिंग्स बनाता है किसी भी एक चीज़ के लिए, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल ओनरशिप हो जाती है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि किसी एक टारगेट या चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि कोई कंपनी आ सकती है, डिज़ाइंस आ सकते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई फॉर्मेट आ सकता है, कोई प्रोग्राम आ सकता है, कोई कैंपेन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ओनरशिप रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ पोजेशन एंड कंट्रोल। इट इज़ अ कॉग्निटिव इफेक्टिव स्टेट, इट इज़ माइंड। वो कहते हैं कि जब आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि ये चीज़ मेरी है, इसका ख्याल मैंने रखना है, इसको मैं ओन करूँगा, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, मुझे इसका जवाब देना है, कल को इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, तो ये जो सेंस है बेसिकली दैट इज़ साइकोलॉजिकल ओनरशिप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए हम बात करेंगे, जब तक हम चीज़ों को ओन नहीं करेंगे ना, तब तक हम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने माशरे को ओन नहीं करूँगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो मैं उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर नहीं सकूँगा, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली। तो नेगेटिवली मैं उस माशरे के अंदर जो चीज़ें मना की गई हैं उससे मना नहीं हूँगा, ठीक है। और अगर जो उस माशरे के अंदर रिक्वायरमेंट है करने की चीज़ें, तो शायद मैं वो करूँगा भी नहीं। सो इसीलिए साइकोलॉजिकल ओनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल ओनरशिप के बेसिकली 5 पिलर्स हैं, और वो कौन से हैं, 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन करते हैं। सो नंबर 1 इज़ दी sense of responsibility, sense of identity, number 2, number 3 accountability, number 4 self efficacy, and number 5 belongingness। चलिए इसको एक 1 by 1 देखते हैं। तो sense of responsibility, when we feel we own something, we feel responsible for protecting it and defending our right. When we protect our possessions, we tend to make improvements, control or limit access by others. When we feel responsible for a target, we invest ourselves into a thorough energy, time and concern. ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपकी कार है, दैट इज़ योर एसेट, तो आप इसको कितना प्रोटेक्ट करते हो, इसको संभालते हो, ध्यान से चलाते हो, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, टाइम पे इसका मोबाइल फिल्टर चेंज करवाते हो, ट्यूनिंग करवाते हो, दैट इज़ यू ओन दैट थिंग, यू फील दैट दिस इज़ योर पोजेशन, इसके ऊपर आपका राइट और आपका कंट्रोल है, और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग इसके ऊपर कंट्रोल हासिल ना कर सकें। आप लिमिट करते हो दूसरों की एक्सेस उसके ऊपर, बिकॉज यू वांट इट टू बी यूजफुल फॉर योर ओन सेल्फ। समझ आ रही मेरी बात?
तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चीज़ों को ओन करने लग जाते हैं, जिन चीज़ों को हम ओन करने लग जाते हैं, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं, हम उस पर अपना टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, उसके बारे में फिक्रमंद भी होते हैं, और जब टाइम पड़ता है तो हम उसको डिफेंड भी करते हैं। अब वो आपकी कार भी हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, राइट। नाउ कम्स द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आपको किसी भी चीज़ के साथ अपनाइयत फील होने लग जाए, ठीक है, जिस तरह से कोई बंदा अगर कोई जॉब करता है, वो कहता है कि दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई ऑक्यूपेशन, दिस इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई गेट मनी, दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई फीड माई किड्स, दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई हैव अ सोशल स्टेटस, दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई यूज टू मेक फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रॉम वेयर पीपल नो मी। तो जहाँ से आपको लोग जानने लग जाएं, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। तो जब आप चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हो, साइकोलॉजिकल ओनरशिप करते हो, तो आप चीज़ों के साथ आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। मेरी ज़ात, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरी क्लास, मेरे दोस्त, समझ आ रही है? ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं और ये आपकी आइडेंटिटी बताती है, ठीक है। जिस तरह से कहा कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो उसके दोस्त कैसे हैं आपको पता चल जाता है, ओके। तो आप अपने दोस्तों को ओन करते हो, खबरदार मेरे दोस्त के बारे में बात की तो, ठीक है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप है, बिकॉज यू आइडेंटिफाई विद दैट फ्रेंड, दैट्स व्हाई यू फील दैट इट इज़ योर पर्सनलाइजिंग, इट इज़ योर ओन पोजेशन, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को स्ट्रांगली होल्ड करते हो और डिफेंड करते हो, ठीक है। So establish, maintain and reproduce self identity through interactions with tangible and intangible targets, ठीक है। जिस तरह से टेंजिबल कहते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी गाड़ी हो सकती है, ठीक है, लोग अपना नाम लिखवाते हैं, अपना खास किस्म का नंबर प्लेट लगवाते हैं, ये क्या है, ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि यार ये मेरी चीज़ है, ये मेरी पहचान होनी चाहिए। पीछे बड़ा बड़ा लिखवा देते हैं जट, क्या बात है, तो आप अपनी ज़ात उसके ऊपर प्रिंट करवा देते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी, दूर से पता चलना चाहिए कि भाई ये मेरी चीज़ है। नाउ कम्स द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखें, जब जिम्मेदारी आती है तो उसके साथ आपको जवाबदेह भी होना पड़ता है, ठीक है। ये इसी तरह के आपको किसी जगह पे मैनेजर बना दिया गया तो आपको साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट आपको जवाब भी देना पड़ता है। आपको कुछ पावर्स दी जाती हैं और फिर उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं आप अपने राइटली वे में, और फिर आपसे जवाब भी दिया जाता है कि ओके आपको ये एरिया दिया था, आपने कितनी सेल्स की, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? ओके जी। सो अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर है, जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना तो आप उसके लिए जवाबदेह भी होते हो। व्हेन वी फील वी ओन समथिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवरसेल्फ टू बी अकाउंटेबल फॉर दीज टारगेट्स। जिन चीज़ों के बारे में हम कहते हैं ना कि हम इसको ओन करते हैं तो हम उसके बारे में जवाबदेह भी होते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट अदर होल्ड अस अकाउंटेबल फॉर द टारगेट। हमें यह भी पता है कि हमसे लोग पूछेंगे यार ये तूने गाड़ी रखी हुई, इसका हाल क्या किया हुआ है, तो भाई इसके ऊपर कोई पैसा भी लगाया कर यार, वो ठीक किया कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी बॉडी आपकी ओनरशिप है, लोग आपसे कहते हैं यार क्या लिया बनाया है तूने, भाई इसका तो जवाब देनी है, ये तुझे कोई चीज़ दी हुई है भाई, कोई चीज़ संभालने के लिए दी थी, तो उसके बारे में क्या कर रहे हो यार, तुमने ऐसे ही बच्चों को खुलाया। समझ आ रही मेरी बात? सो यू आर अकाउंटेबल फॉर योर फैमिली। लोग पूछते हैं आपसे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम अपने बच्चों के साथ, उनको अच्छे स्कूल में क्यों नहीं दाखिल कराते, सारा दिन वो इधर उधर फिरते रहते हैं, वेले निकम्मे। तो आप अकाउंटेबल हो, आप जवाबदेह हो, और फिर जब आप चीज़ों को ओन करने लगते हो तो फिर आप कहते हो कि हाँ इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे इसके और एहतियात और ख्याल रखना और मुझे इसकी जिम्मेदारी और अच्छे से अपने साथ इंटैक्ट करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आती है। और आगे हमारे पास है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट समझिएगा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आपकी अपनी एबिलिटी कुछ काम करने के लिए, कि मैं कितना समझता हूँ कि मैं कोई काम कर सकता हूँ। और ये पिक्चर भी आपको बता रही है कि ये आंटी क्या कर रही हैं। ये आंटी जनाब अपने मसल्स दिखा रही है कि येस आई कैन डू इट। सो सेल्फ एफिकेसी मीन्स योर ओन परसेप्शन ऑफ योर ओन एबिलिटीज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. Sense of self-efficacy relate to your belief in own competencies enabling successful performance in a specific task. When we feel we own something, our self-efficacy may become stronger. जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को own करते हैं, किसी चीज़ की responsibility लेते हैं, तो हमारी self-efficacy उसको manage करने के लिए, उसको control करने के लिए, उसको change करने के लिए, modify करने के लिए, alternate actions उसके साथ attach करने के लिए, उसके अंदर amendments करने के लिए हम लोग अपनी powers को
अच्छा समझते हैं, हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं अपने आप को कि ओके इसका मेरे पे जिम्मेदारी, तो मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इसको संभाल सकता हूँ। तो जो भी चीज़ आपकी ओनरशिप में आती है उसके साथ आपकी सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी भी साथ अटैच हो जाती है। एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मीन्स कि जिसके साथ आप अपनी एहसासात को, अपने इमोशंस को भी अटैच कर लेते हो, ठीक है। So belongingness is a fundamental human needs to belong. For example, need for a home, need for feelings, need for love, need to be cared, need to be sheltered. When we feel we own something, जब हमें लगता है कि हमारे पास, हम किसी चीज़ को own करते हैं, we feel attached to it. हमारी उसके साथ अटैचमेंट होती है। देखें, लोग पेट्स रखते हैं, किसी ने कुत्ता रखा होता है, किसी ने बिल्ला रखा होता है, किसी ने मुर्गियाँ रखी होती हैं, कबूतर रखे होते हैं, कछुए रखे होते हैं, सांप भी रखे होते हैं लोगों ने, और जिन्होंने नहीं रखे होते उनके वैसे ही साइडों पे जो है ना वो अपने ही जो है वो सांप बन जाते हैं। एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई रियली वांट यू पीपल टू बिलीव इन इज दैट सेंस ऑफ ओनरशिप ट्रिगर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप उनके साथ अटैचमेंट भी फील करते हो, और जब ये 5 एलिमेंट्स कंबाइनिंगली हो जाते हैं, इसका मतलब कि आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बहुत शिद्दत से उसको अपना समझते हो, ठीक है। और ये आपके रिलेशनशिप्स में भी ऐसे जाता है। जब आप कहते हो कि ओके समबडी इज़ इन माई रिलेशनशिप, समबडी इज़ माई सन, समवन इज़ माई वाइफ, और इवन यू हैव सम कजन्स और वेरी गुड फ्रेंड्स, तो आप कहते हो कि ओके मेरी बिलोंगिंगनेस है, मेरी अटैचमेंट है, मेरी इमोशनल अपील उनके साथ है। क्यों? क्योंकि मैं ओन करता हूँ, मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप संभाल के रखने हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर ये रिलेशनशिप्स एंड्योर करें, ग्रो करें, नर्चर करें, हमेशा के लिए रहें। समझ आ रही? सो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। ओके, हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके अंदर 6 मैंने भी यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई 100 हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके अंदर आप और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। लोगों में, चीज़ों में, बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एज अ मीडिएटर, एज अ मॉडरेटर दरमियान में जंप इन करके चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कोलैप्सेस हैं इनको, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको सेटल डाउन करना है और उनको हमें बेहतर वर्जन के अंदर लिखना है, राइट। एड्रेस कंट्रोवर्शियल इशूज़, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम्स बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस करें, तहम्मुल से, अच्छे अंदाज से उन पर बात करें, ठीक है। डिफरेंट टैबूज़ हैं सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर बात करें, ठीक है। हेल्थ और हाइजीन, पाकी के बारे में लोग बात क्यों नहीं करते, एक दूसरे को क्यों नहीं समझाते, ठीक है। अगर आप कहीं से गुजरे और आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप लोगों को बताएं कि यार ये तुमने गंद फेंका हुआ है, या आप दूसरे दोस्त को ये नहीं बताते कि यार तेरे से स्मेल आ रही, भाई नहा लिया कर। आप ये समझते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, यार उसको पता नहीं कि उसने नहाना है, भाई उसको नहीं पता ना, तो आप बता दो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट इन अ गुड एंड साउंड मीनिंग। प्रमोट डायलॉग रादर डिबेट। अच्छा, अब जब आप कंट्रोवर्शियल इशूज़ की बात कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो डायलॉग पैदा करें, दोनों तरफों से बातें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना इल्म झाड़ दिया और दूसरों पे आपने अपना फतवा लगा दिया और फिर उन्हें कह दी कि जी बस मैं कहता था बस कह देता। नो, प्रमोट डायलॉग, अगले की बात भी सुने, क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा, अगले बंदे के दिल में क्या बात है, जस्ट सॉर्ट इट आउट, और फिर बातचीत हो, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सोशल एक्शन प्लान फॉर सोसाइटी। अपनी सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एक SAP सोशल एक्शन प्लान, कोई भी बेहतरी के लिए आप दरख्त लगा सकते हैं, पानी का कूलर रख सकते हैं, आप मस्जिद के अंदर जाके एक्स्ट्रा जूते रख सकते हैं, तो खुदा न खास्ता किसी का चोरी हो जाए तो वो इंतज़ामिया सके तो इंतज़ामिया उसको देगी, ठीक है। तो मैं लाहौर में था, 2 साल पहले की बात है, तो रमज़ान में 2 या 3 साल पहले की बात है, तो रमज़ान में ताक रातों में हम चले जाते थे क़याम करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने चोरी कर ली होगी मेरी जूती। मेरा कज़न मुझे कहता है यार तेरी जूती वैसे बहुत पुरानी हो गई है, तो यू शुड बाय अ न्यू पेयर। तो मैं कहता था यार चलो ठीक है यार, ये ईद पे ले लूँगा यार, चलो चलता है, अभी काम चल रहा है। सो एनीवेज, व्हाट रियली हैपन इज़ कि मैंने जूती नहीं ले ली, और वंस वी स्टेड इन अ मॉस्क फॉर ताकरात स्टे, तो उसके बाद जब निकले वहाँ से तो वो बहुत बड़ी ग्रैंड मॉस्क थी अंदरूनी शहर लाहौर के अंदर। सो वहाँ पे बड़ा बंदोबस्त भी होता था, ताक रातों का प्रॉपर बंदोबस्त होता था, और डिफरेंट स्कॉलर्स आते थे और रिसर्च स्कॉलर्स आते थे, और बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशंस होती थी, और फिर नवाफिल भी पढ़ाए जाते थे। सो कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं जब वहाँ से निकला, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने चोरी कर ली थी, मैं ये कह रहा हूँ
कि शायद किसी ने जल्दी में भूले से मेरी जो चप्पल थी वो पहन ली, या वो नई थी इसलिए बहुत चमकती हुई नज़र आई तो किसी ने समझा किसी और ने भी नहीं ली होगी। सो एनीवेज, तो हमें नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना, तो बस वो कोई भूले से ले गया। सो फिर क्या हुआ, तो मुझे बड़ी नीड फील हुई, तो मैंने जाके गार्ड से कहा, मैं कहा यार मेरी चप्पल यहाँ पे थी और वो अब यहाँ पे नहीं। कहते आप रुके 1 मिनट में आपको अंदर से ला देता हूँ। एंड ही बॉट मी अ वेरी सिंपल बट न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स, और उसने कहा सर ये आप रखें। मैंने कहा यार ये भाई मैं क्यों रख लूँ, ये बिल्कुल नया है, मैं क्यों इसको लेके जाऊँ, ये किसी का आप उठा। कहते नहीं भाई, यहाँ पे मस्जिद के अंदर लोग जो साहब हैसियत हैं वो एक्स्ट्रा पेयर्स रखवा जाते हैं कि अगर कभी किसी का आगे पीछे हो जाए, गुम हो जाए, मिल ना रहा हो, कोई गलती से पहन जाए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पेयर्स होते हैं। तो आई जस्ट वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा यार देखो लोग इस हद तक भी सोचते हैं। सो पीपल, योर सोशल एक्शन प्लान कैन बी ऑफ एनी डायमेंशन। वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। आप गली की नुक्कड़ पे एक छोटी सी टोकरी खंबे के साथ बांध दें ताकि लोग उसमें कचरा फेंकें और कचरे वाला वहाँ से ले जाए। समझ आनी मेरी बात? तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। प्रमोट सोशल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जी, अपने साथ, अपने पास, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को एजुकेट करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। जिस तरह से हम अभी सेशंस कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, हम जाके बताते हैं लोगों को कि यार ये डिटॉल है, इसको इस्तेमाल करें, डिसइंफेक्ट करें। अगर डिटॉल नहीं मिलता तो ब्लीच ले लें, अगर साबुन नहीं है कुछ जगह साफ़ करने के लिए तो सर्फ इस्तेमाल कर लें, कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लें। तो आप लोगों को प्रमोट करें और एजुकेट करें और अवेयरनेस बिल्ड करें। एंड नंबर 6, चैरिटी वर्क्स। चैरिटी वाकई काम करती है। तो आप सदकात खतरा क्या कहते हैं, सदकात दें और क्या कहते हैं खैरात करें और लोगों के अंदर बांटें। सिर्फ पैसे ही नहीं, अपना टाइम भी दे सकते हैं किसी को, अपनी रिसोर्सेज भी दे सकते हैं, पुराने कपड़े भी दे सकते हैं, नए कपड़े भी लेके दे सकते हैं। ठीक है, लोगों को अच्छा मशवरा देना भी एक चैरिटी है। तो किसी भी फॉर्मेट में कोई भी अच्छा काम करें आप। और आजकल तो वैसे महीना रमज़ान का है तो इसमें जो दिया गया होगा उसको तो अल्लाह ताला ने मल्टीप्लायर लगा देना। सो चैरिटी वर्क्स। तो आप किसी को कुछ पका के खिला दें, जितना भी हो सकता है थोड़ा दे दें, एक खजूर का दाना ही दे दें किसी को, तो अल्लाह ताला उसके वजह से आपको बहुत नवाजने वाला है। सो एक्टिव एंड सोशली यूजफुल आप हैं कि नहीं हैं, इसको जानने के लिए आप अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछेंगे, व्हाट इज़ योर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एट लार्ज। मेरा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? जी बहुत बुरा इम्पैक्ट है। मैं तो कूड़े को आग लगाता हूँ, सारे मोहल्ले में धुआं ही धुआं हो जाता है। क्या बात है, दुनिया को पता लग जाता है चौधरी ने कूड़ा जलाया, क्या बात है। दूसरी साइड पे मैं सफाई करना चाहता हूँ और अगली साइड पे मैं जो खांसी के मरीज़ पैदा कर। भाई ऐसा इम्पैक्ट पैदा नहीं करता। आपका अपने घर पे क्या इम्पैक्ट है, आपका अपनी यूनिवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट है, आपका अपनी कॉलोनी या लोकेलिटी या आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे क्या है। व्हाट चेंज यू कैन अकर, आप कहाँ पे क्या चेंज लेके आ सकते हैं। अपने आप को ये सवाल पूछें और उससे आपको पता चल जाएगा आप कितने एक्टिव और कितने सोशली यूजफुल हैं। अगर ये सारे जवाब आपको नेगेटिव मिलें तो भाई फ़ोटो आपके सामने है आपकी। और अगर कहीं ना कहीं पे आपका कोई इम्पैक्ट है तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और आप और बेहतरी लेके आ सकते हैं अगर आप अपने इम्पैक्ट को इंक्रीज करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में रहने वाले और सोसाइटी से इम्पैक्ट होने वाले और जुड़े हुए हर चीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर वो काम कर रही हैं वहाँ पे लोगों के लिए, ठीक है। जिस तरह से वो कहते हैं कि रेफर्स टू द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी बाय द विर्च्यू ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोड्यूस ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्योंकि ये कंपनियां जिस तरह से लाइफ बॉय, ये तो ब्रांड है, एंग्रो, ठीक है, रैकेट बेनकीजियर, नेस्ले, ठीक है, जितना भी और कंपनीज हैं, जैज है, यूफोन है, ठीक है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है, और फौजी फर्टिलाइज़र है, जिस तरह से भी कंपनीज़ हैं इनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस सोसाइटी में ये लोग काम करते हैं, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, भाई उस सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर काम करें। और कंपनीज ऐसे कर रही हैं। जिस तरह से आप देखें कि लाइफ बॉय और सेफ गार्ड और यूफोन और नेस्ले, ये वैसी कंपनीज़ हैं, एंग्रो, जो अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, अब स्लाइड में भी आ रहा है कि 4000 स्कूल्स जो हैं पाकिस्तान के, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। CSR इनिशिएटिव बाय यूनिलीवर पाकिस्तान। सो CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव लिया यूनिलीवर पाकिस्तान ने और इदारा तालीम व आगाही बिल्ड किया जिसने 4000 स्कूलों को स्ट्रेंथन किया और वहाँ पे पढ़ाई को आम किया। और इसी तरह देखेंगे नेस्ले,
फूड के जो है वो जलजला ज़दगान के लिए और सैलाब ज़दगान के लिए फूड के डिफरेंट पैकेट्स बना रहा है, और यूफोन जो है वो बच्चों को डिफरेंट चीज़ें जो है वो तकसीम कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह की बारहा एग्जाम्पल है। देखिए, बिजनेस का मतलब, कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि आप आए हैं, आपने पैसा कमाया और आपने लोगों को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी और चले गए। नहीं, आज के दौर में वो कहते हैं कि बिजनेस के ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो सोसाइटी की वेलफेयर और वेलबींग के लिए भी काम करें। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR है क्या? अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, आप देख लें इसको, ठीक है। UK गवर्नमेंट भी इसको कहती है कि हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बेनिफिट जो कि इन्वायरमेंट के हैं और मिनिमाइज करना चाहते हैं नुकसानात को। और यूरोपियन यूनियन क्या कहते हैं जी कि इट्स ए कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। खुद से वो कुछ ऐसे काम करें जिसके अंदर वो सोसाइटी के और इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को अच्छी तरह से आंसर कर सकें और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को खुद से अपनी खुद साख्ता एफर्ट्स के थ्रू सपोर्ट कर सकें। सो अब हम यहाँ पे कंबाइन एक डेफिनेशन देखते हैं कंप्लीट के CSR है क्या। We define CSR as a business commitment। ये बिजनेस की कमिटमेंट है टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि आगे तक ज़िंदगी तक चलती रहे, जो बाकी रहे। वर्किंग विद एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, लोकल कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकें। इसी तरह देखें कि नेस्ले कबीर वाला का जो प्लांट है ये पहले डीजल पे चलता था, इसको उन्होंने कन्वर्ट किया गैस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब डीजल जलता था तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन हवा के अंदर एमिट होता था और इन्वायरमेंट ख़राब होता था। फिर उन्होंने गैस पे किया मीथेन CH4 पे, तो उससे बर्न होने से कार्बन कंटेंट्स बिल्कुल भी पैदा नहीं होते या बहुत थोड़े होते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया नेस्ले की फैक्ट्री, तो वो साल के अंदर कितने मिलियन जो है वो क्या कहते हैं क्यूबिक फीट ऑफ कार्बन इमिट करते थे। लेकिन आज जो है वो बेहतर हो गए और उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर लिया, आसपास के लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई, सांस लेने के लिए आबोहवा अच्छी मिल जाती है उनको। अच्छा जी, CSR अनदर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। CSR के कुछ और नाम भी हैं, जिस तरह से ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी कहते हैं और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। इन माई ओपिनियन दीज टर्म डिस्क्राइब द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ दैट CSR। So company choose the terminology they feel comfortable with, जो उनको अच्छी लगती है वो उसको चूज कर लेते हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि what does social responsibility means। social responsibility mean का मतलब क्या है। Does it mean that corporate action must not harm society? कि corporations, कंपनी ऐसे काम ना करें जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, या वो ऐसे काम करें जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो ये दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। ये मैंने एक व्यू आपको बताया, आप इसके अंदर देखेंगे कि कंपनीज़ के ऊपर 3 तरह की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली इकोनॉमिक, कि कंपनीज प्रॉफिट पैदा करें और फिर इकोनॉमिक लेवल पे कंज्यूमर्स को अच्छी प्रोडक्ट्स दें और अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी पे भी दें, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है। नाउ कम द सोशल फैक्टर। सोसाइटी के अंदर करप्शन ना हो, कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, लेबर और वर्क प्लेस के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट भेजें और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें। फिर आ जाते हैं कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न, जिस तरह से आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, रिसोर्सेज को रिसाइकल करें, रीजनरेट करें, बायोडाइवर्सिटी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हों, ठीक है, जो कि इंसान के माशरे को ख़राब ना करें, वेस्ट को मैनेज करें और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एक इंटीग्रेशन है कि कॉरपोरेशंस को, कंपनीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों साइड्स के ऊपर लेके आनी चाहिए, इकोनॉमिक साइड पे भी, सोशल साइड पे भी और इन्वायरमेंटल साइड पे भी। Then comes right to information. Provincial Government of Pakistan in 2013 has passed an act on right of information. The purpose of this act is to provide information to every citizen of Pakistan which they need, allocated budget of union council, infrastructure जो भी है। कहते हैं ये हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिर कुछ एक्शन भी होने चाहिए।
सो हम आपके पास एक ग्रुप एक्टिविटी आपको दे रहे हैं जिसके अंदर आप एक डिज़ाइन करेंगे कोई भी सोशल एक्शन प्लान। पीछे मैंने आपको बताया था कि सोशल एक्शन प्लान क्या है, कि आप सोसाइटी में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं तो आपका ये सोशल एक्शन प्लान हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, यही आपकी असाइनमेंट भी है। तो आप डिज़ाइन करें कि आप सोसाइटी के ऊपर कौन सा एक्शन प्लान लेके आना चाहते हैं। अभी तक की कोई बात है? अच्छा, इसके अंदर खैर ये ग्रुप की सूरत में नहीं है, इंडिविजुअल में है। तो आप बताएंगे कि आपका अपना नाम क्या है, ग्रुप रहने दें, आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कौन कौन उससे फ़ायदा लेगा, बैकग्राउंड क्या है या नीड या रिक्वायरमेंट कैसे पैदा हुई, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, और कैसे आप देखेंगे कि आपने अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सैप मीन्स सोशल एक्शन प्लान, ठीक है। यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं कि सोशल एक्शन प्लान है, कोई भी अच्छा काम हो सकता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें और मुझे अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 मैनू दुआवां च याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।